কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য নারী কল্যাণ মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ফার্টিলাইজার মন্ত্রী সম্মানীয় জেপি নাড্ডাজি, জগৎ প্রকাশ নাড্ডা মহাশয়, এখন জেপি নাড্ডাজিকে মালা দিয়ে বরণ করে নেবেন জেলা সভাপতি এবং তার সঙ্গে বাকিরা। বন্দে মাতরম, भारत माता की, भारत माता की। দুহাত তুলে সবাই স্বাগত করুন জেপি নাড্ডাজি, স্বাগতম জেপি নাড্ডাজি, স্বাগতম সুকান্ত মজুমদার, স্বাগতম। মালা দিয়ে বরণের পর এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মোমেন্টো দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি অর্জুন কুমার বিশ্বাস মহাশয়। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে বন্দে বন্দে। জেপি নাড্ডা স্বাগতম। ডক্টর সুকান্ত মজুমদার স্বাগতম। এবার ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আমাদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, তিনি নাড্ডাজিকে বরণ করে নেবেন ফুলের তোড়া এবং উত্তরীয় দিয়ে। জেপি নাড্ডাজি, স্বাগতম। বন্দে একদম বন্দে বন্দে এখন বন্দে। সম্মানীয় ভারত মাতা কি, দুর্গা মায়ের মূর্তি দিয়ে জেপি নাড্ডাজিকে বরণ করে নেবেন রামপদদা এখন জেপি নাড্ডাকে বরণ করে নিচ্ছেন একটি দুর্গা মূর্তি দিয়ে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এখন আমাদের সম্মানীয় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদারকে বরণ করে নেবেন শাখারব সরকার মহাশয়, রাজ্য সম্পাদক, এবং আমাদের নদিয়া উত্তর জেলার ইনচার্জ শাখারব দা সুকান্ত দাকে বরণ করে নিচ্ছেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এবং আমাদের এমপি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়। আমি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কি। কি ব্যাপার, উত্তর নদিয়ার দম কি ফুরিয়ে গেল নাকি? দু হাত তুলে একসাথে বলুন আমার সাথে, ভারত মাতা কি। হ্যাঁ, এবার বোঝা যাচ্ছে নদিয়ার লোকেরা। আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। হয় নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নীতিন নবীন জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, নাড্ডাজি জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। বন্ধুগণ, আজকে দিকনগর স্টেশনে পাশে আমাদের যে মাঠ, সেই মাঠে আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রার সূচনার সভা, এই বিভাগের নবদ্বীপ বিভাগের সেই বিভাগের পরিবর্তন যাত্রার সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের সকলের প্রিয় ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আমাদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, যিনি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে বুথ জিতা তো ভোট জিতা, যিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন
পৃষ্ঠা প্রমুখের গুরুত্ব, সেই নাড্ডাজি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। একবার জোরে হাততালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানাবেন নাড্ডাজিকে এই নদিয়ার পুণ্যভূমিতে। উপস্থিত আছেন আমাদের অবজারভার মাননীয় শ্রী অমিত বালব্য মহাশয়, উপস্থিত আমাদের পার্টির অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নেতা আমাদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা মহোদয়, উপস্থিত আমাদের সাংসদ মাননীয় জগন্নাথ সরকার মহাশয়, উপস্থিত আমাদের দুই জেলার সভাপতি, এই জেলার সভাপতি মাননীয় শ্রী অর্জুন বিশ্বাস মহাশয়, উপস্থিত আমাদের নদিয়া সাউথের সভাপতি দিদি, তিনিও আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। এছাড়াও অশোক কীর্তনিয়া, রামপদ দাস, ভাস্কর ঘোষ, এছাড়াও শঙ্কর সাকারব সরকার, মহাদেব সরকার, অন্যান্য এমএলএ, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং মোর্চা প্রেসিডেন্ট সহ এমপি ক্যান্ডিডেট আমাদের রাজমাতা অমৃতা রায়, তিনিও আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন। সম্পূর্ণ মঞ্চকে একবার জোরে হাততালির মধ্য দিয়ে আপনারা সকলে মিলে বরণ করে নেবেন। আজকে এই দিগনগর স্টেশনের পাশে আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যভূমিতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। চৈতন্য ভাগবতের অনন্ত খণ্ডে শ্রী চৈতন্য মহাদেব বলে গেছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। আজকে সেই ভূমিতে, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভূমিতে আমরা যখন এখানে আছি, চৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই নাম পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তৃণমূল কাদের নাম পৌঁছচ্ছে? তৃণমূলের কথা বললে পরে, তখন এই নদিয়া জেলার কথা বললে পরে, তখন মানিকের কথা মনে পড়ে যে মানিক বাবু লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছিলেন। এটাই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নদিয়া জেলাকে দান, সেটাই নদিয়া জেলাকে তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে। আজকে যারা চাকরি বিক্রি করেছে, যারা আমাদের কর্মসংস্থানকে আটকে দিয়েছে, আজকে আমাদের সামনে এই ভোট এসছে। এই ভোট বিচার করার ভোট। এই ভোট কোনো একজনকে মুখ্যমন্ত্রী বানাবেন বা মুখ্যমন্ত্রী থেকে সরিয়ে দেবেন তার জন্য ভোট নয়। আপনার এই ভোট ঠিক করবে আগামী দিনে আপনি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হরিনাম নিতে পারবেন কি পারবেন না। এই ভোট ঠিক করবে আপনার গলায় কাঠের মালা থাকবে কি থাকবে না। এই ভোট ঠিক করবে আপনি রাধে রাধে বলতে পারবেন কি পারবেন না। এই ভোট সেটা ঠিক করবে, সেটা আপনাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কি রাধে রাধে বলতে চান? গলায় কাঠের মালা রাখতে চান ভবিষ্যতের জন্য? চান ছেলেমেয়েরা হরিনাম করুক? চান সেটা? তাহলে আমার সাথে জোরে বলুন, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। যারা হরিনাম বন্ধ করে দিতে চায়, নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় একদল কাজী এসেছিল। সেই কাজী বেটা যখন ছিল, তে বলেছিল এখানে হরিনাম সংকীর্তন হবে না। চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন করে দেখিয়েছিলেন তাদের বুকের ওপরে। কাজী চলে গেছে, এখন পাজি পশ্চিমবঙ্গে এসে বসেছে। তার বুকের নামে আমরা হরিনাম করব, তার মুখের সামনে আমরা রাম নাম নেব। দেখি কত বড় দম আছে, কত বড় বাপের বেটা হয়েছো। আমাদের রাম নাম বন্ধ করে দেখাও, আমাদের হরিনাম বন্ধ করে দেখাও, আমরা সেটা দেখতে চাই। সে ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেই। তাই মানিক ভট্টাচার্য যখন চুরি করে, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের দম থাকে না তাকে সাসপেন্ড করার জন্য, তাকে দল থেকে সরানোর জন্য। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাইপো বুঝে গেছে যে আগামী দিন সময় ভালো আসছে না। এখন তাই দিদিমণি গান করছেন, হরি হে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার করো আমারে। পার করবে, পার করবে, বিজেপি পার করবে আর জনগণ পার করবে। জনগণের একটা ভোট এইবার তৃণমূল কংগ্রেসকে এখান থেকে সাবার করবে। আমাদের রাজ্য সভাপতি বলেছেন এবারের নির্বাচন তৃণমূলের, এবারে নির্বাচন। তবে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, সাধু সাবধান। যারা তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ করছে তাদেরকে চিনে রাখুন। দুটো তথ্য আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি। 21 সালে আসানসোলের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা মাত্র আমরা 3000 ভোটে হেরেছিলাম। রানীগঞ্জ বিধানসভা মাত্র 4000 ভোটে হেরেছিলাম। আর সিপিএম ভোট পেয়েছিল পাণ্ডবেশ্বরে যথাক্রমে 12,000, রানীগঞ্জে 21,000। তাই যারা সিপিএম কে ভোট দেন সেই সমস্ত বন্ধুদেরকে বলছি,
সিপিএম এ ভোট দেয়া মানে প্রকারান্তরে তৃণমূলকেই ভোট দেয়া। তাই যদি সিপিএম কে ভোট দিতে হয় তার থেকে ভালো তৃণমূলকে ভোট দিন। আর যদি সঠিক পরিবর্তন চান তাহলে নরেন্দ্র মোদীর পদ্মফুলকে ভোট দিন। সেই পদ্মফুলে ভোট দিয়ে বিজেপিকে জয়যুক্ত করুন, সেই আহ্বান আপনাদের সামনে জানায়। বন্ধুগণ, আপনাদের জেলাতে এখন লিস্ট বেরিয়েছে, আপনারা কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। কারো নাম হয়তো ডিলিটের তালিকায় চলে গেছেন। যাদের নাম ডিলিটের তালিকায় চলে গেছেন তারা ডিএম এর কাছে দরখাস্ত করুন 15 দিনের মধ্যে। আপনাদেরকে আমরা সাহায্য করব। যাদের নাম চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে, অর্থাৎ যাদের নাম লটকে আছে, সেই নামগুলো তারাও আমাদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। ভয় পাবেন না। সমস্ত হিন্দু উদ্বাস্তু যারা আছেন তাদেরকে বলছি, আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয়তো অনেকেই শুনেছেন। সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সময় বলেছিলেন আপনারা সবাই নাগরিক, কাউকে সিএতে অ্যাপ্লাই করতে হবে না। আজকে সিএতে অ্যাপ্লাই না করার জন্য দেখুন মানুষকে কত ভুগতে হচ্ছে। তাই যাদের নাম, যারা উদ্বাস্তু পরিবারের, যাদের নাম কাটা গেছে, তারা একত্রিত হন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে প্রশ্ন করুন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সিএতে অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন নেই, আমরা করিনি, এখন আপনাদের জন্য বিপদে পড়ছি। তার উত্তর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিতে হবে। আর যদি সাহস থাকে চলুন একসাথে জড়ো হন। যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, যারা সিএতে অ্যাপ্লাই করেননি, আমি সকলকে নিয়ে একসাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাব আর বলবো দিদি আপনি জবাব দিন কেন সিএতে আপনারা অ্যাপ্লাই করেননি। তাই সিএতে যারা অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের আমরা ব্যবস্থা করব। আগামী দিনে মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করেছি যত শীঘ্র সম্ভব তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক, তারা যাতে ভোট দিতে পারে। আর এসআইআর এর ভয়ে পিসিও কাঁপছে, ভাইপোও কাঁপছে। পিসিও কাঁপছে, ভাইপোও কাঁপছে। কাঁপছে না কেন? কাঁপবে না কেন? গতবার 73 বিধানসভায় আমাদের প্রাক্তন জেলা সভাপতি এই জেলার তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হেরেছিলেন মাত্র 6,915 ভোটে, মাত্র 6,915 ভোটে। এখনো পর্যন্ত যে এসআইআর হয়েছে সেই এসআইআরে 8,357 নাম কেটে গেছে। আব তেরা ক্যা হোগা রে কালিয়া? এখন তৃণমূল কোথায় যাবে? তৃণমূলকে হারতে হবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। তৃণমূলের হার অবশ্যম্ভাবী। তৃণমূল এবার হারছে, হারছে, হারছে। বিজেপি সরকার হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে। কেউ বাঁচাতে পারবে না, কেউ আটকাতে পারবে না। আপনাদের দক্ষিণের, এখানে তো আমরা উত্তরে আছি, আমরা এখানে জিতেছিলাম। দক্ষিণে আপনাদের যিনি বিধায়ক মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, তিনি 9,305 ভোটে জিতেছিলেন। এসআইআরে বাদ চলে গেছে 10,495। উজ্জ্বলের বাল ফিউজ, উজ্জ্বল আর জ্বলছে না, উজ্জ্বল আর জ্বলবে না, মন্ত্রী হতে পারবে না, বিধায়কও হতে পারবে না। শুধু উত্তরে নয়, দক্ষিণে নয়, 73তে নয়, একাধিক জায়গায় আরো পদ্ম ফুল ফুটবে, পদ্ম ফুল ফুটবে। তাই সকলে মিলে একবার আমরা প্রতিজ্ঞা করি পদ্ম ফুল ফোটানোর। সকলে মিলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে যেই প্রার্থী হোক, মনে রাখবেন 294টা সিটে প্রার্থী হচ্ছে আপনার মাথার উপরে পথ করে ওরা পতাকায় থাকা পদ্ম ফুল। সেই পদ্ম ফুল হচ্ছে প্রার্থী। তাকে ভোট দিয়ে আমাদেরকে সকলে মিলে জেতাতে হবে এবং জেতানোর পর রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এই পশ্চিমবঙ্গে। তাই আমার সাথে বলুন, পাল্টানো দরকার, চাই পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরেকটি তিনি স্লোগান দিয়ে গেছেন, সেটাও মনে আছে তো? বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। এর পরের একটা লাইন আমি লাগিয়েছি, টিএমসি বাই বাই। বাঁচতে চাই, টিএমসি, 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 টিএমসি কে বাই বাই জানিয়ে পদ্ম ফুল ফোটান। নাড্ডাজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবে। একবার জোরে হাততালি দিয়ে আরেকবার নাড্ডাজিকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ আমাদের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
সম্মানীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয় তার বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের যে দিশা দেখিয়েছেন সেই পথ দিয়ে আমরা আগামী দিনের নির্বাচন সম্পন্ন করব। এখন আমরা যার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় ছিলাম, সেই জেপি নাড্ডাজি আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন, কিন্তু যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, তার বক্তব্য আমরা মাঠের মধ্যে থেকেই শুনবো। যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন তাদেরকে আবার বলবো, সবাই মাঠের মধ্যে আসুন এবং আমরা সবাই মিলে জেপি নাড্ডাজিকে হাততালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবো এবং নাড্ডাজির বক্তব্য আমরা আমাদের কানে শ্রবণ করব। উনি আমাদেরকে দিশা দেখাবেন আগামী নির্বাচনের জন্য। নাড্ডাজি, স্বাগতম। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ में यहां मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथी, लोकसभा में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांतो मजुमदार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश के सहप्रभारी और सोशल मीडिया के कार्य देख रहे अमित मालवीय जी, हमारे बहुत पुराने साथी, युवा साथी राहुल सिन्हा जी, जगन्नाथ सरकार जी जो सांसद हैं रानाघाट से, रामाबाद दास जी विभाग के संयोजक, अशोक कीर्तनिया जी, भास्कर घोष जी, शंकर राव सरकार जी, महादेव सरकार जी, सुजीत विश्वास जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अर्जुन विश्वास जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सौभाई के नमस्कार। आज जब मैं बंगाल में आया हूं तो मैं इस हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भूमि को, स्वामी विवेकानंद की भूमि को, महर्षि अरविंदो की भूमि को, सुभाष चंद्र बोस की भूमि को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि को बहुत बहुत नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब यहां कृष्णानगर में आया हूं, नादिया में आया हूं, तो मैं निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु को याद करता हूं। जो चैतन्य महाप्रभु, उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। ये जो नौदिया न केवल एक भक्ति की भूमि है, यह भूमि बंगाल की संस्कृति की भूमि है, बंगाल की भाषा की भूमि है, बंगाल की शिक्षा की भूमि है और बंगाल से देश में समाज सुधार का अजूबा संगम है ये नौदिया। ऐसे स्थान को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह देख करके मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोगों ने पलटानो दरकार, एक बार बीजेपी सरकार, इस बात को आपने अपने मन में बना लिया है और आप इसी मंत्र को लेकर के चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, ये बंगाल एक ऐसी पवित्र भूमि, संस्कृति की भूमि,
देश को दिशा देने वाली भूमि रही है, जहां देश में यह कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। यह बंगाल की थाती थी जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन ममता जी की सरकार ने जिस तरीके से इस जगह को औद्योगिक जगत के दृष्टि से जाना जाता था, व्यापारिक दृष्टि से जाना जाता था, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था, हमारे कलकत्ता को, हल्दिया को, आसनसोल को, दुर्गापुर को, सब ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाने जाते थे। और उसी तरीके से यहां चाहे कोयला के खदान हो, चाहे स्टील के प्लांट्स हो, चाहे जूट मिल्स हो, या फिर भारी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग हो, बंगाल सभी बातों के लिए जाना जाता था। बंगाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास के लिए इसको बहुत बड़ा योगदान था और इंडस्ट्री की दृष्टि से यह अग्रसर था। लेकिन दुख की बात है कि ममता जी की सरकार में पिछले 11 वर्षों में बंगाल नीचे जाता गया और पिछड़ता चला गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज उद्योग बंद हो रहे हैं, खदानें बंद हो रही हैं, औद्योगिक विकास रुक गया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 11 वर्षों में, पिछले 14 सालों में लगभग 6,688 औद्योगिक घराने बंगाल को छोड़ करके चले गए हैं या बंगाल में उद्योग के धंधे बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा 2015 में 870 हमारे इंडस्ट्रियल उद्योग बंद हुए, 2016-17 में 918 बंद हुए और 2017-18 में 1027 उद्योग घराने बंद हो गए। बोलिए ये बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? बंगाल में उद्योग बंद हुआ कि नहीं हुए? और मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1300 उद्योग यहां से महाराष्ट्र में चले गए, लगभग 1297 यानी लगभग 1300 ये दिल्ली चले गए। यानी बंगाल को छोड़ने में यहां पर कोई कसर ममता सरकार ने नहीं छोड़ी ताकि यहां से औद्योगिक घराने यहां से निकल ना जाए। ब्रिटानिया जो बिस्कुट बनाता था, जो सारे देश में, दुनिया में जाना जाता था, उसने भी अपनी फैक्ट्री यहां बंद कर दी। बंगाल आजादी के समय औद्योगिक कंट्रीब्यूशन इसका 24% था, आज उसका कंट्रीब्यूशन 3.5% रह गया है। यह बंगाल की बदहाली आकर के खड़ी हुई है। 1960 में हमारा सकल जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीडीपी थी, वो हमारी 10% यहां की थी, वो 5% रह गई है। इस तरीके से जो विकास के काम थे, छोटे उद्योगों को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो माचिस की फैक्ट्री थी, बुनाई की फैक्ट्री थी। यहां नादिया तांत के लिए जाना जाता था, तांत की साड़ी, वहां भी रायपुर लूम को लाने का काम वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां रुक गया है, एफडीआई समाप्त हो गई है। यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, डी फॉर डिसेप्शन और आई फॉर इनकॉम्पिटेंस। ये यहां एफडीआई का मतलब बन करके रह गया है। आज अगर हम देखें तो घुसपैठ बंगाल में उसकी महारत हासिल कर ली है हमारी ममता जी ने, और ममता जी बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहती है। बंगाल के लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे
और घुसपैठियों को यहां पर पनाह देने का काम ममता सरकार कर रही है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना क्या? इसको पलटाने की दरकार है कि नहीं है? पलटाओगे ना? आज देखो, आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि यहां पर लगभग अगर हम देखें तो नेशनल जो हमारे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वह लगभग यहां पर 19,698 केसेस यहां दर्ज हुए हैं। लगभग 28% एसिड अटैक हुआ है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का काम बिल्कुल समाप्त हो गया है, चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज रही नहीं गई है। यह वेस्ट बंगाल की सरकार ने करके दिखाया है। ऐसी सरकार को हम सब जानते हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से रेप हुआ, मर्डर हुआ, हमको मालूम है कि किस तरीके से टीएमसी यहां पर हर तरीके का नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम ऐसी सरकार को जल्द से जल्द यहां से रुखसत करें, उनकी छुट्टी करें। इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सारे जगहों की विकास किया। आज हम ये कह सकते हैं कि देश में आज भारत जो 11वें नंबर की इकॉनमी थी, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। और बहुत जल्द हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये भारत का बदलता चेहरा है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है। स्टील में हम 2रे नंबर पर पहुंचे हैं। मोबाइल लगभग 98% आज भारत बना रहा है। और उसी तरीके से आज प्याज में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हैं। दुनिया की 28% की खपत भारत पूरा करता है। ये आज भारत की थाती बनी है। आप सड़कों की बात करो, हाईवेज की बात करो, आप यहीं से बाहर निकल करके देखो, आपको अच्छी सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? मोदी जी की सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस विकास को रोकने का काम और किसी ने नहीं किया। उसको हमेशा रोकने का काम ममता जी की सरकार ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ टैक्स के डिवोल्यूशन से वेस्ट बंगाल को देता है, जो 142% से ज्यादा है। ग्रांट इन एड हम 37,148 करोड़ दे रहे हैं, जो कि 312% ज्यादा है। उसी तरीके से बंगाल को और बंगाल की भाषा को मोदी जी ने क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया है। आज बंगाल को दुनिया में स्थान देने का काम किया बंगाली भाषा को तो मोदी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रानाघाट डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बनने की बात हो, या फिर पिछले 11 सालों में 4000 किलोमीटर सड़क यह भी नेशनल हाईवे की वेस्ट बंगाल में बनी है। रेलवे में लगभग 53 किलोमीटर, नाडिया में नए प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइन के लिए गए हैं। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी में 4 सिटी को जोड़ा गया है। 11 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल को दिए, 11 मेडिकल कॉलेज। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। उसी तरीके से अमृत भारत स्टेशन में एक 101 स्टेशन आपके यहां बन रहे हैं, जिसमें नवादीप धाम भी, यह स्टेशन भी यहां बन रहा है, जिसके लिए
जो यहाँ पर लगभग उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे से जल्दी बन करके तैयार हो। वंदे भारत की 10 ट्रेनें बंगाल में चल रही हैं। अमृत भारत के एक्सप्रेस ट्रेन वो 9 ट्रेनें यहां से चल रही हैं। और लगभग यूनियन बजट में रेलवे का बजट वो 14,205 करोड़ रुपए इस साल का है, जो कि 10 गुना ज्यादा है पिछले यूपीए के टाइम से। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, हर तरीके से आगे बढ़ने का काम किया गया है। मैं यहां एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत वह लागू हुआ था। लेकिन ममता जी ने आयुष्मान भारत यहां बंगाल में लागू नहीं होने दिया, और इसके कारण 1,25,000 लोग, लगभग 40 लाख परिवार, जिनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर मिलना था, उससे वंचित रखा है ये ममता सरकार ने। लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है, जमीन नहीं दे रही है। और जिस दिन हमको जमीन मिल जाएगी, उसी दिन बॉर्डर पर बाढ़ लग जाएगी, फेंस लग जाएगा, और घुसपैठियों को रोकने का काम पूरा हो जाएगा, और एक घुसपैठी को बाहर निकालने का काम भी हो। बोलो, आप चाहते हो बांग्लादेशी बाहर जाए? आप चाहते हो ना? बोलो, बांग्लादेशी बाहर जाए ना, घुसपैठ रुके ना। अगर घुसपैठ रोकना है तो परिवर्तन यात्रा में भाग लो, परिवर्तन में जाओ, और ये परिवर्तन लाओ। जिस दिन परिवर्तन आएगा, हमारी सरकार उसी दिन जमीन देगी, और फेंस लगेगा, बॉर्डर लगेगा, बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो जाएगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात करें, ये सिंडिकेट, ये बोलो बालू चोर है कि नहीं है? कोयला चोर है कि नहीं है? बोलो चीनी चोर है कि नहीं है? हर तरीके की चोरी करने का काम, कोई भी टेंडर हो, कट मनी। अरे दुर्भाग्य की बात है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। टीएमसी को कोविड के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की और लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, तो इन लोगों ने उसमें भी कट किया, उसमें भी इन्होंने धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया, अपने घरों को भरा, और जो गरीब को मिलना चाहिए था वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आपस में हलवा मारना मारा। बोलो, ऐसे टीएमसी को रहना चाहिए क्या? भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया? इनके मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, इनके मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, इन लोगों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया कि नहीं किया? आप बताओ, इनका एक एमएलए नेता जेल में है कि नहीं है? हर तरीके का व्यवचार किया कि नहीं किया? मित्रों, अगर पेरेंट्स से छुट्टी पाना चाहते हो, अगर तुष्टि
एक बात और बताना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले, ये ऋषि पुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम का गीत लिखा, उनको भी इज्जत देने का काम, उनको भी इज्जत देने से वंचित करने का काम टीएमसी ने किया। इस बार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति महोदया पढ़ रही थी और जब उन्होंने कहा कि 150 साल वंदे मातरम गीत को हो गए हैं और वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर हम वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऋषि पुरुष को नमन करते हैं, उस समय ये कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के लोग वहां हल्ला कर रहे थे और राष्ट्रपति को पढ़ने से रोक रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे। इस तरीके का काम किया, इस तरीके का काम किया। ऐसे लोगों को जो वंदे मातरम मोदी जी का विरोध करते करते वंदे मातरम का विरोध करने लगे, ऐसे लोग जो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हो। अभी एआई समिट हुआ, इस एआई समिट में दुनिया में देश को सराहा, भारत दुनिया के मानचित्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाना जाने लगा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वह हरकत की जिससे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल उसे कहा जाए कि अपना दिवालियापन का पूरा नुस्खा दिखाने में सक्षम है और वही इस तरीके का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने बंगाल को दोनों हाथों से लूटा है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, परिवर्तन यात्रा में हम सब भाग ले, तीव्र गति से परिवर्तन यात्रा में अपने आप को जोड़े और तीव्र गति से बंगाल के विकास के लिए हम जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम परिवर्तन यात्रा को सफल बनाएं, गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, अलग जगाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनको वायदा करें कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कमल खिलेगा, आपके दुख दर्द दूर होंगे और बंगाल फिर से विकास की प्रगति पर चलेगा। यही मुझे कहना है। आपने